Hello, Good am I morning, sir. audible? Good morning, class. Good morning, How Yes, are you sir. sir. all? Audible, sir. Thank you. Have you got your classroom code? Yes, sir. Already joined, sir. I have updated PP. Okay, I have updated PPTs, and नहीं after सर that, उसमें I will नहीं है update कुछ syllabus and So notes there too. is no PPT. कोई पीपीटी और ये नहीं है सर उसमें I have updated there. नहीं है सर। but Nothing is nothing Fine. is visible nothing to is any there, one of sir. us sir. No, sir. हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो कि आप लोगों के ज्वाइनिंग के बाद मैं जो अपडेट करूं वो आपको शो करे. हाँ शायद So सर यही हो सकता है let's everybody join. Then again I will update. Okay, आप लोग 12-1 नो बजे तक सर, सब लोग नो ज्वाइन सर, करेंगे. नहीं सर, आप अपडेट कर देंगे तो कभी भी वो शो करता है सर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ज्वाइन करेंगे तो फिर शो होगा। At my end, I have seen that. प्लीज Just चेक a अगेन minute. सर। सर प्लीज चेक अगेन। Just a minute. I'm doing the same. Classroom, visiting fourth. Have you gone in the section of classwork? Hmm? Have you gone in the section of classwork in the classroom? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, I sir. I, I am still able to see PPTs of retail Maybe management. सर ये maybe हो it सकता है won't कि be आपने visible पीपीटी to us. अपलोड किए There हैं might be वो some सिर्फ आप ही option. देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते हैं। Okay, आप वो नहीं देख सकते हैं. नहीं सर। No, sir. It's not visible to us. Why? Because I have updated for you people only, na. And you will not be visible, then the purpose will not be solved. Okay, we'll discuss it. Otherwise, send you on WhatsApp. Because at my angle, it is visible. I can show you too. Just a moment. The screen is already in share. Sir, get it check from the technical member. See, are you able to see the screen? No. नो सर। No, sir. The screen is not sharing. No, sir. Now, No. ये क्या प्रॉब्लम हो गया नया. Again, I am trying. Now, No. Yeah, now I started actually. fine. Are you able to see course? Yes, sir. Screen is visible to all. Yes. What's showing upcoming and all that? No work division coming. That's create agenda.
Still not showing here, but in my mobile it is showing. Once again, I am trying to add. आप लोग देखिएगा इसको. Let's continue with the session. Retail environment. Before that, anyone having any query? Is there any problem with anyone? No, sir. See, in basic retail environment, we have understood about internal factors and external factors, right? I have not touched those factors because that are the basic business environment again required to be sustained in any kind of business, whether it is marketing, whether it is HR, whether it is retail, whether it is IT, whether it is any kind of businesses is there. That's the internal factor and external factor. Internal factor means customer, competitors, employee, intermediaries. These are the internal factors. External factor, that is the pastel model. Political factor, economic factor, technological factor, social factor, cultural factor are those. Okay. I assumed that you have must be studied either in the marketing or in business environment. So I have not touched in that area. Is it okay with you? Hello? Yes, sir. So I have taken the specific dimension of a retail environment. There are a number of elements and features that define the retail environment, or also known as the store atmosphere. How we can create a healthy retail store, how we can create a healthy retail outlet in where we can circulate a peace to our customers, a good ambience to our visitors. The basic points are decor aspects of the store. How a store is lucrative or decorative is. This impacted very much. As we know that as an individual customer, which type of product we use to purchase? A product having poorly packaged or a product having well packaged? बोलिए. Well packaged. Of course, well packaged. So for retail outlet, which type of retail outlet, which type of retail shop we used to visit? The outlet is well decorated or outlet is poorly decorated? Well decorated, well organized. Well decorated, well organized, very good. So this comes first, that the decoration aspect, systematically arrangement of the goods. Then sounds. We want to hear a pleasant sound there, light music, certain announcements, rather noise, aromas of the outlets, lighting effects, sight and textures which appeal to the five senses we use and also enrich the overall surroundings of the retail store, including the crucial brand image that it's known for. कई सारे benefits इसको देखने के मिलेंगे, एक एक करके हम आगे देखते हैं. That basic positive factors retailing के लिए जब भी हम consider करेंगे तो वहाँ पे ये कुछ crowding, colors, music, lighting, friendly staff, cleanliness, ये कुछ variables आइडेंटिफाई किए हैं मैंने. इसके आधार पे हम लोग रिटेल आउटलेट के इंटरनल एनवायरनमेंट को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से गवर्न करने की कोशिश करते हैं. क्राउडिंग मीन्स हाउ वी आर मैनेजिंग द क्राउड इन रिटेल स्टोर. आप देख सकते हैं डायग्राम में, फिगर में आपको दिख रहा है
कि एक फ्लोर इसका ऊपर का जो टॉप फ्लोर है यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम है, मिडिल फ्लोर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, ग्राउंड फ्लोर में कंपैरेटिवली। तो एरिया अगर हमारा बड़ा होता है तो ज्यादा पीपल भी अगर वहां आते हैं ना तो ओवर क्राउडेड फील नहीं होता है। So we need to manage our store in terms of crowd very much essentially. Crowding is one of the many factors of that affect the store atmosphere. The condition of crowding. अच्छा ये बात बताइए कितनी बार ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि have you gone for the purchasing of your grocery from Big Bazaar, you purchased everything and at the cash counter you just dropped your basket and turned back due to huge crowd. Yes, कभी sir, ऐसा it हुआ? Sir, happened. many times. Yes, sir. Yes, sir. That means we can say the store is not able to manage the crowd properly. That's why this is the problem. अगर एक काउंटर पे रश ज्यादा है, what they need to expand their number of counters. Yes, They need sir. to use 4 counters, 5 counters so that the crowd will be dispersed and every काउंटर्स देयर विल बी हार्डली 4 to 5 पीपल। जहां भी आप ऐसे आप किसी भी आउटलेट में आप जाके देखें कि जहां भी ऐसा कोई आउटलेट है जहां 8 से 10 काउंटर एक साथ है, वहां किसी भी काउंटर पे 3 से 4 बंदे से ज्यादा का वेटिंग नहीं होता है। लेकिन जहां पे एक ही 2 काउंटर रनिंग होते हैं वहां पे बहुत देर हमें वेट करना पड़ता है। और समटाइम्स जब लगता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पर्पज से जाते हैं कि अपने मंथली ग्रोसरी वहां से लेके आए, इन दैट कंडीशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर द क्राउड। और तब बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण लिया हुआ सामान इन्वेस्टेड टाइम वेदर इट इज हाफ आवर 1 आवर इट ऑलमोस्ट वेस्टेड, क्योंकि हम वी आर नॉट एबल टू गेट इट डन बट इट क्लोज द सेल, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो Yes, sir. डिसएडवांटेज क्या था वहां पे? प्रॉब्लम क्या था? मैनेजमेंट ऑफ क्राउड। तो बीइंग एज अ रिटेल आउटलेट owner or manager, we need to procure that the crowd should be managed properly. The condition of crowding typically includes many shoppers during given time and place, but crowding can also occur depending on the floor layout, design, and display of merchandise, which may cause limited customer space. तो हमें हर फ्लोर पे कस्टमर्स के लिए, विजिटर्स के लिए एडिशनल स्पेस एक तरीके से बना के रखना पड़ेगा जहां पे कि वो स्टे कर सके, वो दे कैन वॉक, दे कैन स्टैंड। आप देख सकते हैं मॉल्स के सामने ये सब जो स्पेस दिया गया है फॉर व्हाट? टू डिस्पर्शन ऑफ द क्राउड, ताकि यहाँ पे भीड़ डिस्पर्स करे। अदरवाइज ये सारा भीड़ कहाँ रहेगा? शॉप्स के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉप्स को बाहर से घूम के चले जाते हैं। दे कम टू द फूड कोर्ट एंड स्टार्टेड taking food and get back. Some especially targeted that no, we have to make our facility with particular this segment. So they visited particular shop, particular outlet, and that's over. If we are visiting for Cinepolis, that means the crowd is at that floor. So everywhere, for the dispersal of crowd, it is essentially required that some additional space should be there. Before designing floor layout, the factor must be kept in the mind. Then the customer perception of crowding can affect their emotions as well as their buying decisions during their shopping time. Of course, जैसा कि आपने बिग बाजार में फेस किया, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने बताया कि आपने परचेज किया और ओवर क्राउडिंग की वजह से आपने उसको वहीं पे स्टोर में ड्रॉप करके आ गए। In the store layout design and collection of fixture inefficient, then this will negatively affect the customer shopping experiences. Definitely यहाँ पे कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो निगेटिव रूप से होगा। So what we need to manage proper crowd. Then colors. We need to understand that which color should be attractive, which color should be distractive. Accordingly, we need to identify the colors for our store design. Colors are the necessary to live in as a place up. The variety of colors used plays a large factor in determining a store's environment. For example, the use of warm color such as red and yellow will help create arousal in the store atmosphere. On the other hand, to influence a more pleasurable dimension in the store atmosphere, it is best to use cool colors
like blue and green. Have you ever focused that why hospitals use their curtains color as green? कभी फोकस किया है उस डायरेक्शन में हमने कि क्यों हॉस्पिटल्स में जितने भी कर्टन्स होते हैं ये सारा सारा ग्रीन क्यों यूज किए जाते हैं, बेडशीट्स व्हाइट क्यों यूज किए जाते हैं? एनी रीजन फॉर दैट और इट इज रैंडमली सेलेक्टेड? नो सर, देयर इज अ रीजन। वो कूल इफेक्ट देती है, वो माइंड को भी बहुत Exactly. काम रखने में वो कलर हेल्पफुल होती है। पीस इफेक्ट, काम इफेक्ट, कूल इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई दे अडॉप्टेड दैट। बहुत सारी चीजों में आप देख रहे हैं, या यहाँ जो एक स्टोर का ये आउटलेट दिखाया गया, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा हम वी कैन से ब्राइट कलर्स अगर हम यूज, ऑल्दो ब्राइट कलर्स आर यूज्ड, ग्रीन इज आल्सो ब्राइट, रेड इज लाइट blue, yellow, these are the bright, but the combination is not distracting us. So we need to identify as per as related with our product, as per as requirement with our product, which color should be procured and which color should contains in our retail outlet, so that we can assume more better manner to our customer and serve them in effective manner. A store incorporating a variety of colors to induce a fun atmosphere and delightful imagination that appeal to young teenage shoppers. ऐसे colors, if the product are related with the teenagers, the colors should be related with them. So that means इससे एक conclusion तो हमने निकाला कि according to product और जिस एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, we need to identify the color of that particular section. If it is departmental store, मेरा एक स्ट्रेट क्वेश्चन आप लोगों से है, दिव्यांका नहीं बोलेगी, बाकी लोग बोलेंगे, कि क्या हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक स्टोर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, दैट मीन्स ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हम कलर का सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं? आउटलेट की फिलॉसफी, प्रोजेक्टेड टारगेट कस्टमर्स एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सर कलर और इंटीरियर डिपेंड करता है कि अंदर माल कैसा है। जैसा माल रहेगा अंदर सर, उस तरह से हम इंटीरियर करते हैं या करवाते हैं सर। एग्जैक्टली, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड टू व्हॉम वी आर टारगेटिंग। क्योंकि सर यही वो तरीका है जो ग्राहक को एक आउटलेट के बाहर से अंदर की तरफ जाने पे खींचता है, आकर्षित करता है सर। गुड पंकज। उसमें सर चुंबकीय शक्ति होती है सर, इसलिए इसको यूज किया जाता है और ये एंटायर वर्ल्ड में यूज हो रहा है सर। ये बेहतर तरीका है प्रेजेंट करने का सर। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। मूविंग अहेड, म्यूजिक. It plays a significant part in retailing, and it is a several environment factors that differentiate a retail store among its competitors. Many retailers consider music to be an attractive feature to influence shoppers due to its relatively easy access and it expensive to provide. अब इसका भी सिलेक्शन हम प्रोडक्ट और कस्टमर बेस के हिसाब से करते हैं. In addition, music can easily be changed to create a specific mood that appeals to the different. म्यूजिक का क्या रोल रहेगा सर? आपके माइंड को कूल करना, माइंड को रिलैक्स करना, आपको डाइवर्ट करना टुवर्ड शॉप्स, बाहर की चीजें आपके दिमाग में प्रोसेस ना करें, और बीच बीच में उसी म्यूजिक को स्लो करके इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के थ्रू आपको अपील करना, आपको प्रोडक्ट के प्रति अवेयर करना, कोई स्पेशल स्कीम है वो आपसे शेयर करना. सर म्यूजिक जो चलते रहता है सर, म्यूजिक जो है ताल में तड़का के जैसे और बटर रोटी पे बटर के जैसे, ठीक है ना सर, इस तरह से काम नहीं वो नान पे बटर के जैसे काम करती है सर. क्योंकि क्या होता है कि म्यूजिक से जो है वो मतलब वो पूरक है, ठीक है,
जैसे कि अगर कोई जिम में भी जा रहा है या फिर मॉल में भी जा रहा है, किसी दुकान पे भी जा रहा है, तो अगर वो वहां देख रहा है कपड़े जो है देख रहा है, तो वो अगर म्यूजिक सुन रहा होता है तो उसको एक अलग मतलब बहुत बेहतर एक्सपीरियंस होता है वहां पे उसको। एक साइकोलॉजिकल इसका हाँ, इम्पैक्ट होता है। और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है, एक मिनट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ये होता है कि आप जब भी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तो एक स्ट्रेस आपके ऊपर हमेशा होता है कि आज तो इतना पैसा मेरा खर्च होने वाला है, ठीक है। तो किसी न किसी कारण से वो स्ट्रेस तो आपके ऊपर आता है। एंड नॉर्मली वो इन्वायरमेंट अगर आपके लिए प्लीजिंग होता है तो अपने बजट से आगे जाके आप एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं, उसमें आपको अपील करे, अट्रैक्ट करे, उसके लिए म्यूजिक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है म्यूजिक पंकज? जो होता है सर म्यूजिक जो हाँ, होता है वो गौरव। बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। म्यूजिक से बड़ा Yes, स्ट्रेस बस्टर yes. होता नहीं है। दैट्स वाई आप जिम में भी देखते हैं म्यूजिक होता है, क्योंकि आप भारी भारी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, आप पसीना बहाते हैं, उसके बाद आपको मेंटली रिलैक्स करने के लिए वहां पे म्यूजिक चलते रहता है, सो दैट यू डोंट फील दैट यू आर ओवर स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस तो होता है जिम में। Music is also considered as best painkiller. या गुड। सर वो So in पेन addition, किलर है तो इसका मतलब कि अगर कोई भी पेन रहेगा तो म्यूजिक सुनने पे खत्म हो जाएगा। see, it नहीं ऐसा depends, नहीं होता है। depends upon person to person। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको आपका सर मूड खराब है डिफरेंट और टाइप आपको ऑफ वहाँ पे पेन होता है ना, डिपेंड करता है। सर ये बात जो है ना म्यूजिक सबसे लागू स्पेशल नहीं पेन होती को सर। ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई धातु, ऐसा कोई भी बूटी नहीं बनी हुई है जो सबके लिए कारगर हो। That's हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। हर इंसान के शरीर में अलग अलग दोष होता है, अलग अलग गुण होता है। किसी पे वात हावी होता है, किसी पे कफ हावी होता है, किसी पे पीत हावी होता है। तो अगर जिस पे पीत हावी हो वो अगर ऑयली खाए तो उससे खाना नहीं पचेगा, लेकिन अगर पीत पंकज, कम हो सर, समझाई पंकज तो रहा हूँ सर। सुनिए तो, दैट्स व्हाई आई टोल्ड इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, यस सर, सिचुएशन बिल्कुल। टू सिचुएशन। ये मैंने पहले ही सर कोट किया। म्यूजिक जो है सर दिल के दर्द को कम करता है सर। अब देखिए, वी आर डाइवर्टिंग। ओके, हाँ यस कंटिन्यू सर। फर्दर। ये सब अब दिल का दर्द कहाँ का दर्द पे पहुंच रहा है। सर आगे कंटिन्यू कीजिए सर। it also express our feelings and emotions. बस हो गया, वाह बोल लिया वाह। आकाश, अब म्यूट करिए। चलिए आगे बढ़े। म्यूजिक कैन इजिली बी चेंज टू क्रिएट स्पेसिफिक मूड दैट अपील्स टू डिफरेंट इन्वायरमेंट बेस्ड ऑफ देयर एज एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही इस बात को कोट कर दिया था। डिफरेंट एज के हिसाब से, डिफरेंट पीपल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से डिफरेंट तरह के म्यूजिक की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। द टाइप, थीम एंड द पेस ऑफ म्यूजिक प्लेड कैन हैव एन इफेक्ट ऑन शॉपर्स बिहेवियर। वो अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को कि किस तरह का म्यूजिक बना। अब सब आप गुस्से में गए हैं स्टोर में और वहां पे कोई बहुत रोमांटिक सॉन्ग बज रहा है तो आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा। वहां पे आपको मोटिवेशनल सॉन्ग की जरूरत है सो दैट कि आपके गुस्से को कम कर सके। ठीक है, आप किसी प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है, आप वहां जा रहे हैं और वहां पे सिर्फ अपनी ही बात रखी जा रही है, आपका गुस्सा बढ़ेगा। आपको वहां पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। वहां पे इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे कि आपको सुनने वाला कोई हो, आपको केयर करने वाला कोई हो। तो अब म्यूजिक आपके लिए हमेशा प्लीजिंग होता है। हम म्यूजिक क्यों सुनते हैं? अपने आप को रेस्ट करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि म्यूजिक सुनने से अगर मतलब डॉक्टर मेडिसिन के रूप में प्रेस्क्राइब करते हैं कि लिसन म्यूजिक फॉर 1 आवर अगर आप स्ट्रेस्ड है, नहीं, ये इंटरनल फीलिंग है। इफ वी गेट रिलैक्सेशन विद दैट वी यूज इट। बहुत लोग होते हैं जो जब गुस्से में होते हैं दे परफॉर्म डांस। बहुत लोग गुस्से में होते हैं अच्छा लिख सकते हैं। बहुत लोग गुस्से में बड़बड़ाते हैं। तो दे हैव डिफरेंट हैबिट्स, है ना। तो उसमें एक म्यूजिक है which can reduce the level of stress, but again not for all person, depending upon person requirements and the abilities to whom it affects। जरूरी नहीं है कि एक म्यूजिक जिससे मैं रिलैक्सेशन ले सकता हूं वो आपको भी रिलैक्सेशन मिल सके उस म्यूजिक से। हो सकता है कि आपके लिए वो म्यूजिक अलग है। हमने नीड और वांट देखा था ना, तो पर्सन टू पर्सन नीड और वांट वेरी करता है ना। तो म्यूजिक इज व्हाट, अ काइंड ऑफ नीड फॉर अस, नहीं। But it is not necessarily required that one need will be assumed to be need of the entire group। जो मेरा नीड होगा वो आपका भी नीड होगा।
मुझे अच्छा लगता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सुना क्या सर प्रवचन सुना रहा है, तो दिस व्हाट at your age group you are not ready to listen this type of music, but we used to use this music as a motivational music. If anybody get demotivated, we used to ask them, listen this music, you will feel. We ask them, watch Chak De movie, you will feel motivated. So this is what different types of situations are there. For that we need to reduce the level of stress. First we identify whether this stress can be resolved by this act with this person or not. हर लोगों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा, right? So stores that play music liked by the customer will be able to keep the customer in the store longer. जहां ऐसा म्यूजिक जो हमें पसंद हो वहां बज रहा हो, तो म्यूजिक सुनने के लिए भी हम 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा वहां रुक सकते हैं। और अगर रुकते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ पसंद आता है, we spend more buying, whereas shopper will spend less time and money in a store that the play dislike the music. वही उसका उल्टा, वैसे लोग जो उस आउटलेट में म्यूजिक जो बज रहा हो उसको पसंद नहीं करते हैं, उस तरह की म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करते हैं, और वहां म्यूजिक वो बज रहा होगा, what they will do, they will just turn out from that outlet. So this is, it happens. एक म्यूजिक से हम सबको प्लीज नहीं कर सकते, but we need to identify our target segment and accordingly we need to focus that whether with this music our target segment is going to be affected, going to be satisfied or not. Fine. Thus it is idealistic for a store to play music that appeals to their customers. और ये कैसे पता चलेगा? मार्केटिंग रिसर्च, कस्टमर इंटरैक्शंस, और जो सर्वे हम करते हैं, कस्टमर से जो रिस्पांस लेते हैं, सेल्समैन जो हमारे इंटरैक्शन करते हैं, उनसे हम सब ये फीडबैक हमें आता है कि वेदर फीडबैक में ये भी लिखा होता है ना कि एम्बियंस के बारे में आपका कमेंट, तो आप लिखते हैं ना म्यूजिक वर्ड वेरी बैड या म्यूजिक वर्ड वेरी गुड, तो दैट गिव्स ए हेल्प, ए आउटलाइन टू ओवरव्यू how to increase our capacity in better. Then come to the lighting system of the store. आप कभी ज्वेलरी परचेज करने गए हैं? Yes or no? या किसी के साथ गए? Yes sir. बहुत बार गए होंगे? Yes sir, बहुत time. Yes sir. सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहां आपने क्या ऑब्जर्व किया है? लाइटिंग सर, Lightning. पूरा लाइटिंग रहता है सर। येलो ठीक है, लाइट। Yes sir. कस्टमर वहां एक भी अगर रहेगा तो जितने उस आउटलेट के अंदर लाइट है वो सारी लाइट ऑन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके चमक में अगर गोल्ड में डायमंड में सिल्वर में शाइनिंग कम भी है, तो उस लाइट के इफेक्ट के कारण उसकी शाइनिंग इतनी ज्यादा दिखे, एक तरीके से कह ले कि उस रोशनी के चकाचौंध में आपको कन्विंस कर दे कि दिस इज द बेस्ट, इतना बढ़िया शाइनिंग है। और वही प्रोडक्ट जब आप घर पे लाके देखते हैं, आउटलेट में जितना शाइन कर रहा था, घर पे जितना शाइन कर रहा था, दोनों में कंपैरेटिवली डिफरेंस होता है। मैं आपको एक टिप देता हूँ, बहुत सारे जो आज के स्मार्ट बायर्स होते हैं, वो जब जाते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि सर प्लीज लाइट को थोड़ा सा कम कर दीजिए, इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है कि आंख में चुभ रहा है। ये ट्रिक है ताकि नेचुरल लाइट में हम देखें कि व्हाट वी आर गोइंग टू परचेज that is actually shining or not. So on request of the customer they have to be put off their major lights. कम रोशनी में आप देख पाएंगे कि इसकी रीजन एक्चुअल क्वालिटी क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि दुकान में कलर कुछ और दिखता है, कपड़ों के केसेस में भी आप रात को सामान खरीदने जाते हैं तो दुकान में कलर इसका कुछ और रहता है और घर आते कलर में थोड़ा चेंजेस हो जाता है। ऐसा कभी फील हुआ आप लोगों को? कपड़ा अगर Yes sir. Yes. तो दिस इज इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। तो लाइटिंग आपके अंदर वो क्रिएट कर सकता है कि आपको शाइनिंग, कॉन्ट्रास्ट, ये इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन में दिखता है कि लगता है कि ना दिस इज द अल्टीमेट, और हम उसको परचेज करते हैं। द स्टोर एटमोस्फेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इन्फ्लुएंसिंग शॉपर्स बिहेवियर एंड लाइटिंग इज ए कॉमन फैक्टर। स्टोर में अगर लाइटिंग लगाना है तो किस तरह का लाइट लगाएंगे? व्हाइट लगाना है, येलो लगाना है, या रेड लगाना है, या वायलेट लगाना है? डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द सेगमेंटेड कस्टमर्स। एक ही लाइट हर चीज में कामयाब हो
जरूरी नहीं है। अब जैसे सपोज आपको कोई गिफ्ट आइटम्स या कोई डेकोरेटिव आइटम्स आप बेच रहे हैं, तो वहां पे मल्टी कलर लाइटिंग करते हैं ना। लेकिन अगर नॉर्मल अगर आप ग्रोसरी बेच रहे हैं तो वहां पे व्हाइट लाइट इज सफिशिएंट, वहां पे आपको मल्टी कलर लाइटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। ना वो प्रोडक्ट उस तरह का है, ना वहां पे वैसे कस्टमर आने वाले हैं कि लाइट के चकाचौंध में वो सामान खरीदेंगे, नहीं। तो लाइटिंग इज a common factor that contributes to the store environment. It is the store is needed to guests a mean to see the products. It can also enhance the store atmosphere and boost sales if used correctly. It is important, especially for the consumers who don't have the best eye to sight. Lighting is the one of the feature that's simple to provide, but if used strategically, it can develop and improve sales particular items on the store. बहुत सारे आइटम पे, जैसे कपड़ा के आइटम पे हो गया, वॉइस इज क्लियर, कपड़ा के आइटम पे हो गया, ऑर्नामेंट्स के आइटम पे हो गया, इन सब जगह जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एडिशनल लाइटिंग इम्पोज करके वो हमारे ऊपर फोकस करते हैं। बट व्हेन नॉर्मल ग्रोसरी की जरूरत है तो वहाँ एडिशनल लाइटिंग की जरूरत क्या है? नथिंग। वहाँ पे कोई उसका पर्पस ही नहीं है ना। दूसरा साइड आप देखिएगा, वो जो एक्स्ट्रा लाइट आप जला रहे हैं उसका कॉस्ट कहाँ जा रहा है? हमारे और आपके पॉकेट पे ही जा रहा है ना। Who need to bear that? Of course, we as a customer. Yes, sir. Moving ahead, friendly staff. सर अटेंडेंस का लिंक सर। आपसे ज्यादा वो मेरे लिए important है, don't worry, we'll share you. Friendly staff. They are the key into the building good customer relationship that contribute to a good atmosphere. देखिए, आप कोई भी काम करें, आप ऑफिस में काम करें, आप क्लास में काम करें, आप कहीं बाहर मॉल में आप जा रहे हैं, वहाँ के स्टाफ आपसे अगर अच्छे से बात करें, प्लीजिंग मैनर में बात करें, आपसे फ्रेंडली डेवलपमेंट व एसोसिएशन वहाँ आप कर पाएं, तो आपको अंदर से एक इंसिस्ट करेगा मोटिवेशन दैट इट शुड बी कंटिन्यूड लॉन्गर, कि ये बंदा कितना अच्छा से बात कर रहा है, यहाँ से हमें सामान खरीदना चाहिए। बहुत बार न चाहते हुए भी हम बंदे के बिहेवियर के कारण, आउटलेट के फ्रेंडली स्टाफ कर्टियस बिहेवियर के कारण हम वहां पे कुछ ना कुछ परचेज करके बाहर निकलते हैं। अदरवाइज हमें खुद अपने आप में खराब लगता है कि बिना कुछ लिए हम कैसे बाहर निकल जाए। यस सर। तो ये अक्सर, दिव्यांका एकदम ही साइलेंट हो गई। मैंने उस क्वेश्चन पे बोला था, दिव्यांका तुम दूसरे क्वेश्चन पे हम कर सकती हो, मुझे पता था कि यू कैन आंसर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है। डोंट टेक अदरवाइज, फाइन। So staff are the face of the voice of the store atmosphere, and if there is none around the assist, then it will quick become irritated and unhappy. आपको कोई प्रॉब्लम हो और आप चारों तरफ देख रहे हैं and no one is ready to help you, how you feel? Irritated, unhappy. अगर वहां पे कोई स्टाफ आए और बहुत ही प्लीजिंग मैनर में आपसे बोले, मैम, सर, मे आई हेल्प यू, आपको बुरा लगेगा? आपको हर्ट होगा? No, definitely you will feel happy, you will please. So it's important to have a good amount of helpful staff around. A gracious, friendly team of staff is more important than one may think. In fact, they play a large role of determination in retail environment. The staff are considered to be the voice of the store and is often the last face of the customer to see at the end of their purchase. Purchase करने के बाद सबसे लास्ट में जिससे उनका इंटरेक्शन होता है, they are the staff. So it is the first voice, it is the last voice. So staff को हमेशा pleasing होना होगा. Although staff won't always make a sale with every guest, they assist and still helpful in satisfying the customers and making sure that they will feel welcomed in the stores. हम अच्छे मैनर में उनको अपने अंदर स्टोर के अंदर लाएंगे, हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट वहां पे क्रिएट करेंगे। पर्पस ये कतई नहीं है कि किसी कस्टमर के साथ अगर किसी स्टाफ की इंटरेक्शन हो रही है, दैट नेवर मीन्स इनसे तो सेल कराना ही है। नो, असिस्टेंस, वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज। अगर उनको पसंद आएगा सर्विसेज परचेज करेंगे, पसंद नहीं आएगा सर्विसेज परचेज नहीं करेंगे। दे मस्ट बी फील फ्री। क्लीननेस, दैट इज अगेन अ वेरी वाइटल। आप किसी आउटलेट में जाते हैं, वहां गंदगी होती है, आप दोबारा नहीं जाएंगे। It is extremely important to keep a store clean and orderly. Therefore, cleanliness is a very significant factor in the atmosphere of the store. The store's entrance should be clean and neat
show that when a customer walks in, they are encountered a positive and inviting atmosphere that will result in a good shopping experience. It's only natural that a clean store will create a good vibe in the environment, whereas an unclean or dirty and unorganized store will cause a negative reaction to the store atmosphere. It is the customer who enter your store and immediately find it to be unclean is the only way you can beat they won't stay for long. अपने ऊपर लेके देखिए ना, हम अपने ऊपर लेके देखें, हम ऐसा आउटलेट में ज्यादा देर रहना चाहते हैं जहाँ सफाई हो, जहाँ अच्छी लाइटिंग हो, जहाँ अच्छा म्यूजिक हो, जहाँ हेल्पफुल स्टाफ हो, जहाँ का एम्बियंस अच्छा हो। इनमें से एक भी वेरिएबल अगर कमजोर होता है तो क्या हम वहां ज्यादा देर रहना पसंद करेंगे? यस या नो? कभी नहीं सर। No, We sir. will avoid that. Definitely we will avoid that. Yes, sir. जहाँ पॉजिटिव चीज होता है वहाँ नेगेटिव चीज भी होता है, तो नेगेटिव चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। प्रायर टू दैट द मोस्ट Attendance. अवेटिंग मोमेंट, सर अपलोड नहीं हुआ अभी तक पीपीटी। अभी आपके सामने भी मैंने अपलोड किया, नहीं हुआ है सर, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है एडेड, दिख रहा है ना? हाँ सर, हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। पोस्ट कीजिए ना उसको सर, ऊपर में लिख कर पोस्ट कीजिए ना सर। सर उसको फिल कीजिए, पीपीटी लिखिए और नीचे में पोस्ट दिया हुआ है कैंसिल के बगल में, उसको पोस्ट अच्छा तब जाएगा। यस सर। ओके, इसलिए नहीं जा रहा था। यस सर, सिर्फ ऐड हुआ है, अभी पोस्ट नहीं अभी हुआ। अभी कर दीजिए सर, तो हम लोग चेक कर लेंगे आया कि नहीं आया। हम जो ऐड करते हैं सिर्फ उससे नहीं जाता है आपके पास? नहीं सर। नहीं सर, वो सिर्फ ऐड होता है। फाइन, आई हैव पोस्टेड नाउ, प्लीज चेक इट। Yes, sir. Yes, sir. अटेंडेंस लिंक भी दिया हुआ है चैट बॉक्स में, प्लीज उसको भी आप लोग भर दीजिए। अब आ गया सर। आ गया सर। हाँ थैंक यू विशाल। यस सर। सर आप तो भड़क रहे थे, तो पोस्ट कर दिए हैं। नहीं भड़क नहीं रहा, देखो ऐसा नहीं है, मैंने बताया क्या है, अपडेटेड, आई हैव एडेड। भड़केंगे क्यों? आपसे कुछ सीखने को मिला ना कि सिर्फ पोस्ट करने से आप तक नहीं पहुंचता है, इसको ऐड मतलब ऐड करने से नहीं पहुंचता, इसको पोस्ट भी करना है। दैट इज गुड। यस सर, ऊपर में कुछ कमेंट भी लिखना रहता, आप उसको लिख दिए तो उसके बाद पोस्ट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस लिंक से भी क्लास पढ़ सकते हैं क्या? ये जो गूगल मीट लिंक दिया हुआ है स्क्रीन पे, या यहाँ सिर्फ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही रखें? सर वहां से भी क्लासेस होता है, बट फिर यहाँ यही लिंक हो जाएगा गूगल मीट से यहाँ के। अच्छा, तब तो दो डिफरेंट लिंक से कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 14 तारीख तक का लिंक तो मैंने शेयर कर दिया है एडमिन को ऑलरेडी, सो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग एक ही लिंक रखेंगे हर दिन के लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, दैट विल sir. बी मोर कंफर्टेबल आपके लिए भी, मेरे Yes, लिए। sir. वैसे हर दिन मुझे भी आके सबसे पहले एक्सरसाइज करना पड़ता है कि लिंक शेयर करूं। Yes, sir. बिल्कुल। अटेंडेंस सब लोगों ने फिल कर दिया, 25 रिस्पॉन्स आ गए, ऑलमोस्ट हो ही गया। 26-27 लोग ही रहते हैं क्लास में। आज जो हमने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत? इसी तरीके से मैं नोट्स भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है? पता चल गया प्रॉब्लम कहाँ था। कल हम लोग वाइंड अप करके और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको वाइंड अप करके यूनिट 1 को फिर हम लोग नोट्स पर डिस्कशन करेंगे। उसमें अगर किसी टॉपिक में कुछ रह गया होगा प्रॉब्लम, क्वेरीज, 1-2 केसेस भी है उसमें, उस केस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन, ओके सर। कोशिश करेंगे क्या? कोशिश करेंगे सर कि अगर सिलेबस notes वगैरह भी सर पेस्ट कर एकदम देते हैं यहाँ पे सर। Yes, sir.
अब आ जाएगा रवि आवाज तो सर हो गया सर। अगला आगे लाइन से बोलो। कर दीजिएगा। यस सर, बोलिए सर। हम यही बोलने ही जा रहे थे, कोशिश करेंगे कि आज नोट्स और सिलेबस भी अपडेट कर दे। यस सर। सर आपका कोशिश पूरा सफल रहेगा सर, आ ही जाएगा। थैंक यू। हेलो थैंक यू यस, सर। बोलिए राजन, बोलिए राजन। सर, हाँ राजन, कह रहे हैं कि सर वीडियो का लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। नेटवर्क बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है सर, कोई चीज समझ में आता नहीं है सर आपका। आप आईएसएम तो के सर उसको यूट्यूब पे नहीं डेली जा के डेली सर उसको पोस्ट कर दीजिएगा ना ग्रुप में। आप आईएसएम के यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं? मैं सर आईटी वहाँ को, पे जाके सर लिंक रहता है तो सर डायरेक्ट हो जाता है ना सर। ओके, मैं आईटी से बात करता हूँ। नहीं सर, वहाँ पे नहीं ओपन करते सर। If they provide me link, I will definitely share in the WhatsApp group. Fine? ठीक है? ओके सर, क्योंकि कुछ समझ में आता नहीं है सर, नहीं, दिक्कत बीच में नहीं होनी वॉइस जो चाहिए, फ्लक्चुएट करने लगता है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए सब। ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।